بڑگام سے آپ آج کل دوبارہ میں خبر کی مکمل تفصیل اور آ رہا ہوں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت. السلام علیکم. اللہ کی رحمت و پر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وادی کشمیر کا پہلا اپنا ٹی وی چینل. ANN کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے مقامی کیبل آپریٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ ANN اس وقت جموں کشمیر کے علاوہ پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. IPTV گلیکسی پر بھی اب ANN دستیاب ہے. آپ کو بتا دیں کہ IPTV گلیکسی پر بھی آپ ANN دیکھ سکتے ہیں جو کہ دنیا کے مختلف کونوں میں IPTV OTT پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے. ناظرین خبروں کے آغاز میں آپ کو ایک بڑی خبر سے روشنا کر دے. اس وقت زارا وسیم جو کہ ایک اداکارہ ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, بڑی بریکنگ خبر آ رہی ہے. خبر یہ ہے کہ زارا وسیم نے اپنا سوشل اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے. ٹویٹر, فیس بک اور انسٹاگرام جو ہے زارا وسیم نے ڈیلیٹ کیا ہے. آپ کو بتا دیں زارا وسیم جو ہے جموں کشمیر کی ایک چھوٹی سی اداکارہ تھی اور ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. آپ کو اس وقت کی بڑی خبر سے پھر ایک بار روشنا کر دے. زارا وسیم نے ٹڈی کے حملے سے متعلق مذہبی آیت پوسٹ کرنے کے بعد ٹویٹر, انسٹاگرام اکاؤنٹس کو ہدف یعنی بند کر دیا ہے. ANN کے مطابق اداکارہ زارا وسیم نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. جمعرات کو حالیہ ٹویٹ کے لیے انہیں ٹرول کیا گیا تھا اور آن لائن نفرت کی اطلاع ملی تھی جس میں ٹڈی کے حملے کا ذکر کیا گیا تھا. بعد میں اس نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. جمعرات کو ذرائع نے آپ کو بتا دیں زائرہ نے قرآن مجید کی ایک آیت شیئر کی تھی جس میں مصر کی 5 بیماریوں کا ذکر کیا گیا تھا جس میں ٹڈیوں کی بھیڑ شامل ہے, لہٰذا ہم نے ان پر سیلاب اور ٹڈیوں اور جوں اور مگڑیوں اور خون کو بھیجا. آیتوں نے خود ہی وضاحت کی لیکن وہ مغرور ہو گئے تھے. ایک ایسی قوم جس کو گناہ دیا گیا تھا, یعنی انہوں نے قرآن کی آیت اس کو میں نے یہاں پڑھا جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے آن لائن نے کافی جو ہے ہریسمنٹ اور کافی جو ہے اس پر ان کی تنقید کی گئی اور انہوں نے جو ہے اپنا سوشل نیٹ ورک پوری طرح سے بند کر دیا ہے. اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا اس کے بعد زارا کو اس ٹویٹ کا نشانہ بنایا گیا جو کچھ سوشل میڈیا صحافی نے وہ ٹنڈی کے حملے کو خدا کا قہر قرار دے رہی ہے. مجھے زائرہ وسیم پسند ہے لیکن یہ اداکارہ ہے لیکن اس طرح کے مذاق انہیں نہیں کرنے چاہیے. تو بڑی خبر اس وقت جس لڑکی کی طور رہی ہے اور جو سب سے پہلے پتہ کہ عامر خان نے عظیم میں
کہ زارا وسیم اب مذہب دوسری خبر ایک وقت
آصف میموریل ہیلتھ کیئر شمالی کشمیر میں ایک ایسا واحد اور منفرد ڈائگنوسٹک سینٹر جو جدید سہولیات سے 100% لیس ہے. ہمارے یہاں ایسے ٹیسٹس جو پہلے وادی سے باہر دوسری ریاستوں میں کرائے جاتے ہیں ہماری فلی آٹومیٹک اور ہائیجینک لیبوں میں ایک ہی دن میں کیے جاتے ہیں, جیسے تھائرائڈ, کیسر مارکر, ہارمونل ٹیسٹس. ہماری لیبس میں ایک دوسرے ٹیسٹس USA اور جرمنی سے لائی گئی ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس مشینوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں. ہمارا پتہ ہے آصف میموریل ہیلتھ کیئر, بانڈے محلہ, ہندواڑہ, کشمیر. 0195-526-2014 اور 9107020027. قوم, ملک, ذات. قوم, ملک, ذات یا مذہب, ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں. اس بیماری کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم باہر نکلنے سے پرہیز کریں. آپ سے ہماری یہی گزارش ہے, ہمارا ساتھ دیں. گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں. مہربانی کر کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اپنا اور اپنی فیملی کا اس بیماری سے حفاظت کیجیے. آج سب سے ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں. اس بیماری کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم باہر نکلنے سے پرہیز کریں. آپ سے ہماری یہی گزارش ہے, ہمارا ساتھ دیں. گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں. اور ناظرین, اس تجارتی وقفے کے بعد خیر مقدم آپ کا. ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ چھانا پورہ کا جو علاقہ ہے اسے ریڈ زون قرار دیا گیا ہے. اب چلتے ہیں اہم موضوع کی, اور آج کا جو ہم ناظرین کرام موضوع رکھا ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے, وہ آپ سے, ہم سے اور سب سے جڑا ہوا ہے. بات کریں گے جمہوریت میں میڈیا کی ذمہ داری. ہم نے کل ہی بتایا تھا کہ آج جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات ہونی ہے وہ ہے میڈیا. میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے ناظرین؟ انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ریسپانسبلٹیز آف میڈیا ان اے ڈیموکریسی, اور اردو میں کہے تو جمہوریت میں میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے. تو اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتا دے, اگر ہم بات کریں, آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو میڈیا ہے اس کے 3 حصے ہیں, یعنی 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے, جس میں انٹرنیشنل, نیشنل اور ریجنل میڈیا ہے. تو ناظرین کرام آپ کو بتا دے کہ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو انٹرنیشنل میڈیا کی جو ذمہ داریاں ہے وہ ہے انٹرنیشنل افیئرز پہ نظر رکھنا. یعنی انٹرنیشنل میڈیا کی ذمہ داریاں ہے کہ وہ اسٹیٹ لیول پر یعنی علاقائی لیول سے آگے جو دیکھے کہ کیا ریاستوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ریجنل میڈیا ہے. ریجنل میڈیا یعنی لوکل میڈیا. لوکل میڈیا کا کام ہے کہ وہ لوکلی گریونس لوگوں کے دیکھے, جیسے سڑک, پانی یا دوسرے جو مسائل لوگوں کے ہیں اس پہ نظر رکھے. لیکن اگر ہم کہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سڑکیں, بجلی, پانی چلائے, نیشنل میڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشوز پہ انٹرفیئر کرے, اور لوکل میڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز میں جائے, تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے. یہی ہمارے ملکی میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں ہمارا میڈیا بدنام ہو چکا ہے, اور لوگ جو ہے ہمارے میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں, کوشش کریں گے ویژولز دکھانے کی. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کس طرح سے جو ہے ہمارے میڈیا کی تنقید کرتا ہے. آپ کو بتا دیں کہ جمہوریت میں جو میڈیا کا رول ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم آپ کو ویژولز دکھائیں گے, جو ایک ریجنل چینلز ہے وہ بھی دکھائیں گے. فی الحال آپ کو بتا دیں جمہوریت میں میڈیا کا رول کیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ جو رول میڈیا کا ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے. پیسوں کے لیے میڈیا کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, چاہے اس سے ملک کا یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرد کا نقصان ہو. اکثر سیاست دان بند لفافے میں چند روپے, 1000 روپے دیتے ہیں تو وہ خدا بن جاتا ہے, اور جو ایماندار ہو وہ برا آدمی بن جاتا ہے, کیونکہ اس نے صحافی کے ہاتھ میں یہ لفافہ تھاما نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایماندار شخص بے ایمان بن جاتا ہے. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانا کیسے ہے وہ آپ میڈیا سے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اور اب
और एक मुसीबत है, वो है सोशल मीडिया। एक रेडी चलाने वाला, दूध बेचने वाला और बच्चा रो पड़े, वो फेसबुक या व्हाट्सएप पर न्यूज के नाम से एक पेज या सोशल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेता है और बिना की घबराहट के किसी भी इदारे का नाम रखता है। और भला हम भी कहां बच पाए, एएनएन के नाम से भी हजारों व्हाट्सएप और फेसबुक फेक ग्रुप्स और पेजेस चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप को नेशनल मीडिया पर किस तरह से लोगों को आपस में कुछ पेचीदा सवाल पूछकर लड़ाया जाता है, और हमारे ये लोग जो डिबेट्स में जाते हैं, ऐसा लगता है कि घर से अपने बीवी से लड़कर आए हैं। नाज़रीन किराम, हम चाहेंगे पहले आपको दिखाएंगे कि नेशनल मीडिया पर किस तरह का ड्रामा होता है और किस तरह से लोग आपस में लड़ते हैं। वाबस्ता जितने भी लोग होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो ये समझने से शायद कासिर है कि बाहर उनके चाहने वाले उन्हें देखते हैं, और बाद में लोग क्या देखते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे। किसने बोला? किसने बोला? व्यक्तिगत बात हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है? करते हो यार, हाथ कैसे लगाए? हाथ माथे पर हाथ कैसे लगाए? कोई बात ये अलाउ नहीं हो सकता। तो हाथ किसको क्यों नहीं पड़े? ये अलाउ नहीं हो सकता। हाथ किसने लगाया? यार पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? आप अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा अधिवक्ता हो, क्या अलाउ नहीं हो? हाथ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाथ कैसे लगाया? नहीं लगाया, कैसे लगाया? अरे हम खत्म करो, कैसे लगाया? रुको भी करो, बात नहीं करो कि नहीं हाथ तुम आगे बोलोगे, अरे तुमने बोला मुझे, क्या बोला? हाथ नहीं लगाया, मैंने अपने आप को रोका, हाथ लगाया तो बताओ। नहीं गलत आप हमेशा जाहिल बोलते हो, हमेशा गाली देते हो, बताओ यार, मैं कुछ बोलता ही नहीं। और नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे थे ये नेशनल मीडिया का हाल। ये तो कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ आज दिखाएंगे, क्योंकि आज हमने जो मौजू चुना है वो नेशनल मीडिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त हमारा हाल हो रहा है वो हम सब जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वक्त विजुअल्स इंटरनेशनल मीडिया के चलाए जाए, जो ही हमें इशारा होगा। तो जी, इस वक्त आप ये जो वीडियोज देख रहे हैं ये इंटरनेशनल मीडिया है, जो हमारे मीडिया के बारे में क्या क्या कहता है वो भी दिखाएंगे। लगता है कि अगर नेशनल मीडिया पर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में न्यूज स्टूडियो के बाहर ओबी वैन्स के बजाय एम्बुलेंस रखना लाजमी होगा। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने एडिटर से कि जो अभी विजुअल्स हमने दिखाए थे नेशनल मीडिया के वो चलाए वो, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। तो जो ही इशारा होगा कि नेशनल मीडिया के विजुअल्स एयर हो रहे हैं तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नेशनल मीडिया का हाल क्या है, किस तरह की चीजें दिखाई जा रही है, और ऐसा लगता है कि ये एक अखाड़ा है। आपको बता दें कि लगता है कि अगर नेशनल मीडिया पर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में न्यूज स्टूडियोज के बाहर ओबी वैन्स के बजाय एम्बुलेंस रखना लाजिम हो जाएगा। यही वजह है कि हमारे इन चैनलों की वजह से हम पूरी दुनिया में बदनाम होते जा रहे हैं। और साथ में बता दें कि एंकर का काम होगा डिबेट के बाद गेस्ट को वेंटिलेटर तक पहुंचाना, और कैमरामैन का काम होगा लाश को एम्बुलेंस तक पहुंचाना, और मेकअप मैन का काम होगा अगर गेस्ट बच गया तो उसी की मरहम पट्टी करना, और आखिर में स्क्रिप्ट राइटर जिसका काम होगा डेथ सर्टिफिकेट फराहम करना। आज अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो वो हम पर न सिर्फ हंस रहे हैं बल्कि थू भी कर रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप न्यूज चैनल्स देख रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप कार्टून नेटवर्क आज से ही देखना शुरू कर दे, ताकि वो आप अंदरूनी मामलों में भी दखल न दे। हम आपको दिखाना चाहेंगे इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त किस तरह के विजुअल्स और किस तरह की बातें की जाती हैं।
अगरचे काफ़ी विजुअल्स और अक्सबंदी हमारे पास है, लेकिन वो हम दिखाना नहीं चाहेंगे। मुख्तसरन दिखाएंगे इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे नेशनल मीडिया का क्या है हाल। I've listened to enough rubbish from you. We are all now part of Modi's nation. You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. It was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. Is India's media facing a credibility crisis? I've listened to enough rubbish from you. We are all now part of Modi's nation. You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. Biggest ever attack on our Indian forces in Kashmir. Not condemnation. We want revenge. There has to be a four-front war against Pakistan. Shut them down. No visa, no cricket. आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के पास आखिर विकल्प क्या है, क्या कर सकता है इंडिया अगर पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत को युद्ध शुरू कर देना चाहिए। युद्ध शुरू हो चुका है। India has struck Pakistan and we have struck them hard. And most importantly, we have struck them straight in the face. We are supposed to question the people in power. But what has happened in the past 5.5 years is that the media has become a stooge of the ruling government. They have stopped questioning the ruling government, and to make matters worse, they have been propagating the divisive and even the negative agenda of the ruling party. Government can respond before the army can respond. The media immediately jumps the gun, asking for war. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान से बदला कैसे लिया? There's two parts to it. One is that the English right demand for justice. All of our what is the next step that should be taken? But this narrative evolves into a call for war against Pakistan. And like you, I also want Pakistan punished. The coverage on 24-hour news channels has been wall-to-wall with defensible, but descend into unjournalistic ranting, especially during prime time. There are anchors calling for war. Studios populated with former generals talking military tactics. हमारे साथ मौजूद आर्मी के 5 जनरल बताएं क्या है उनका completely absurd and very dangerous voice that's perennially on display from all these anchors. India is demanding just accountability. The anchors are actually pretty strongly shaping public opinion, and the present moment reaction is almost national chat very language coverage competition for view. आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर शुमाली कश्मीर में एक ऐसा वाहिद और मुनफरद डायग्नोस्टिक सेंटर जो जदीद सहूलियात से 100% लैस है। हमारे यहाँ ऐसे टेस्ट्स जो पहले वादी से बाहर दूसरी रियासतों में कराए जाते हैं हमारी फुली ऑटोमेटिक और हाइजीनिक लैबों में एक ही दिन में किए जाते हैं, जैसे थायराइड, कैंसर मार्कर, हार्मोनल टेस्ट्स। हमारी लैब्स में कई दूसरे टेस्ट्स USA और जर्मनी से लाई गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों के जरिए किए जाते हैं। हमारा पता है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, पांजे मोहल्ला, हंदवाड़ा, कश्मीर। 0195-526-2014 और 9107020027। कौम, मुल्क, जात। Attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. Biggest ever attack on our Indian forces in Kashmir. Not condemnation, we want revenge. There has to be a four-front war against Pakistan. Shut them down. No visa, no cricket. आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान पास आखिर विकल्प क्या है, क्या कर सकता है इंडिया अगर पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत को युद्ध शुरू कर देना चाहिए। युद्ध शुरू
हो चुका है। India has struck Pakistan and we have struck them hard. And most importantly, we have struck them straight in the face. We are supposed to question the people in power. But what has happened in the past 5.5 years is that the media has become a stooge of the ruling government. और नाज़रीन, नेशनल मीडिया के चैनल्स पे किस तरह के नमूने आ जाते हैं और उन नमूनों को अगर देखा जाए शायद ही कोई फर्द उनके सामने बैठना चाहिए, लेकिन नेशनल मीडिया को टीआरपी चाहिए। लोकल चैनल्स की बात करें तो लोकल चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है बंद भी हो रही है क्योंकि उनको जो स्पेस काफ़ी कम मिल रही है। बहरहाल ये एक वसी मौज़ा है जिस पे आगे बात करेंगे, लेकिन अगर नेशनल मीडिया की बात करें तो उन्होंने अपनी जगह इसलिए बनाई है क्योंकि इनका काम होता है कि मजहबी मुनाफरत, आपस में लोगों को लड़ाना, झगड़े करना, फसाद उठाना। इसीलिए बिलखुसूस अगर देखा जाए तो लोग इन चैनल्स को ज़्यादातर देखते हैं और जो टीवी चैनल्स प्रॉपर जर्नलिज्म का ख्याल रखते हैं, सहाफत का ख्याल रखते हैं, उनके लिए आजकल की डेट में जीना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल हम आपको दिखाएंगे कॉमेडियन वो किस तरह से टीवी पे कॉमेडी कर रहा है और किस तरह से मारपीट आपस में होती है। ये नेशनल मीडिया का हाल है। हम कोशिश करेंगे कि फिर दिखाने की किस तरह से नेशनल मीडिया पर किन लोगों को लाया जाता है और उनकी कॉमेडी कैसी होती है। अफसोस की बात यह है कि जो एंकर्स के सवाल होते हैं उन्हें प्रवोक किया जाता है और जो वो वहां पे आते हैं अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए दूसरों के जज्बात के साथ खेलते हैं। इसीलिए काफ़ी लोगों ने कहा था कि नेशनल मीडिया ऐसे, यानी सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर नेशनल मीडिया पर वक्ती तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि डीटीएच या दूसरे डिश नहीं कर सकते। लेकिन अगर मखसूस टाइम के लिए, वक्त के लिए इन पर पाबंदी हो तो शायद ये सुधर जाए और जो रीजनल यानी लोकल चैनल्स है उन्हें वक्त दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। ज़राए के मुताबिक और बिलखुसूस जब हमने ख़ास तौर पर उन लोगों से बात की जिन्होंने मीडिया यानी सहाफ़त में पिछले 40-50 साल से काम किया है, उनका भी यही मानना है कि जब तक मकामी लोकल मीडिया को स्पेस नहीं दी जाएगी तब तक नामुमकिन है कि इंसानियत का नाम रहेगा। उन्होंने जो बातें कही वो कल के प्रोग्राम में बताएंगे क्योंकि कल इसका दूसरा एपिसोड भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये है नेशनल मीडिया का हाल। ये तस्वीरें हैं न्यूज चैनल IBN 7 पर हो रही लाइव बहस की। ओम जी और दीपा शर्मा में हाथापाई शुरू हो गई। अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हिंदू महासभा की ओर से बहस में शामिल ओम जी सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी धर्मगुरु दीपा शर्मा अपनी कुर्सी से उठी और ओम जी को थप्पड़ जड़ दिया। अब ओम जी इस विवाद में टीवी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा को घसीट रहे हैं। ये टीवी सीरियल में ये काम ढूंढने का प्रयास कर रही है। डॉली बिंद्रा ने इसको ये कहा है कि तुम स्वामी ओम जी के ऊपर में जानलेवा हमला करोगे, स्वामी ओम जी की हत्या कर दोगी तो मैं तुम्हें टीवी सीरियल में काम दिलवा दूंगी। उस लालच में इसने डॉली बिंद्रा के कहने पर मेरे ऊपर में हमला किया है। चैनल वालों के मदद से मेरी जान बची है। आप ये देखिए कि अभी भी लिगेचर मार्क मेरे गले में है। मेरे माला से मेरे गले को दबा दिया था, सफोकेशन हो गया, मैं मर रहा था। तब मैंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा वो आपने चैनल में देखा है। हाथ उसके गले तक पहुंच ही नहीं पाया, इतनी छीना चपटी में लोग बचाव के लिए आए। वो सीन कब हुआ जब मैंने उसकी माला से उसका गला घोटने की कोशिश की। सब टीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। राधे मां समर्थक ओम जी खुद को हिंदू महासभा का बता रहे थे, लेकिन हिंदू महासभा ने संबंध होने से इनकार किया है। स्टूडियो में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरे तू क्या मारेगी? इस हवाले से नाज़रीन वादी कश्मीर के मारूफ मुसन्निफ शायर ज़रीफ अहमद ज़रीफ क्या कहते हैं। उनका कहना है कि कश्मीरी मीडिया की अगर बात करें, जो रीजनल लोकल मीडिया है वो काफ़ी मुतासिर है और काफ़ी परेशानियां भी उन्हें हो रही है। ज़रीफ अहमद ज़रीफ का कहना है कि अगर कश्मीर के मीडिया की बिलखुसूस बात करें तो वो काफ़ी मुतासिर है, जबकि इस पर जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ ख़ास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाना चाहेंगे। फिर मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे एक ऐसा एंकर जो किसी को बात करने की इजाज़त भी नहीं देता है। वो न खुद एंकर है, वो होस्ट भी है और वो खुद जज भी है, फैसला भी खुद सुना देता है और बाकी मामलात भी वो खुद ही करता है। पहले सुनते हैं ज़रीफ अहमद ज़रीफ को।
یوتان زن میڈیا تعلق بہ ون بحثیت قاشر میڈیا ہیک بہ 3 حصن مز تقسیم کرت گو انٹرنیشنل میڈیا بین الاقوامی سطح گلوبل سہ آزاد تو تک پن اخ رائے تو تک پن فکر اس زن سہ پنس قومس تام واتناوان ات گو بھارتی میڈیا ات بھارتی میڈیا نسبت ہیک بہ ونت کی تمس کم ذمہ داری سہ نبھاوان تم کن مگر اس سون میڈیا یہ برابر چارن آمت یہ لوکن اس امہ بغیر بی ذریعہ آسان سرکاری میڈیا گو اخ اس زن ون تم پتن عوامی میڈیا امس ذمہ داری تل لوکن تام واتناون یہ لوکن ہند بہتری ہند خاطر آ سو شے واتناون یس نا عام انسان کہ پان سو شے پانس تام واتنوت یہ میڈیا کام آسان زندگی پرت کھانا شعبہ میڈیا سی ماتحت سہ سماجیات سیاسیات دینیات اقتصادیات ادبیات ات میڈیا مطلب یم درجہ پن مگر یہ پرت کان شعبہ اس زندگی ہند سہ کہ طرف یہ ذمہ داری امس یہ عوامس تام واتناون یل عوامس باس او یہ مین رپرزنٹیشن کران یا یہ مے تام شے سو واتناوان یس مے بہتر تو میانہ زندگی خاطر اہم یل تات امس پٹھ اوس پریشر نسا یت کن ہیکک یہ شے واتنوت ژے کی یت زن سینسر ونان یت ووت اس مدت اخ سینسر شکار یت کس میڈیاس اخ امس عوامی رنگس مز گۄڈنیتھٕے خیال تھاون اگر بہ کانٛہہ شیٚش چھُس ونان اخبار چھُس کڑان ات کِتھ کٔنۍ پکیم یم مےٚ اتھ سۭتۍ چھِ تِم چھِم پکناوٕنۍ تمیُک مفاد تِہنٛدۍ مفاد تہِ چھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ وۄنۍ ییٚمہِ ساتن اتھ مٲلی لحاظ یُس زن اتھ مدد ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ چھُ سرکار آسان اگر نہٕ سرکارُک سُہ نظریہ نتیجہ ییٚتیُک میڈیا چھُ یہِ چھُ بے چارگی ہٕنٛدِس عالمس منٛز یہ اکہ طرف عوامس یژھان پنس گرفتس مز ان مگر تہ ہیکان واتنوت تہ یہ عوامچ حقیقت حال دویم اس زن سرکاری نقطۂ نظر سہ امس تک نظر تھوان یہ میون نقطۂ نظر پکناوان کن نہ لہذا دون مز یہ ونکس برابر اس زن لوکل میڈیا سون یہ عاجزی ہندس حالتس مز اور ناظرین ظریف احمد ظریف مصنف شاعر اور وادی کشمیر کے ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہے انہوں نے نیشنل میڈیا صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز پر تنقید بھی کی ہے کہ اب میڈیا پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اب یہ پیشہ جو ہے صرف تنقید کا نشانہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عام لوگوں کو جو بھروسہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے انہوں نے کہا بجائے نیشنل میڈیا پر بھروسہ اور اسے سپیس دینے کے بجائے ہمیں لوکل میڈیا کو ترجیح دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو لوکل میڈیا ہے اسے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پسنا پڑتا ہے اگرچہ اس کا آدھا حصہ کل دکھائیں گے فی الحال انہوں نے نیشنل میڈیا اور میڈیا ہاؤسز کے بارے میں کیا کہا تنقید کرتے ہوئے آئیے دکھاتے ہیں ات مز گۄڈنیتھٕے جرنلزمس مز أمِس چھُ گۄڈنیتھٕے نفسیٲتی آسان رنگس مز مےٚ گٔژھۍ سٲری زانٕنۍ یہِ چھُ أمِس نفسیٲتی طور پانس پٮ۪ٹھ غلبہٕ آسان دوٚیِم چھُ پتہٕ أمِس چھُ یہِ بہٕ کیازِ چھُس بنیومُت جرنلسٹ مےٚ کم ذمہٕ دٲری چھےٚ امہِ جرنلزمٕچہِ سُہ گژھِ أمِس گۄڈٕ ذہن نِشن آسُن گوٚمُت پتہٕ چھُ یہِ پیش ترٛیٚیِم چھُ یہِ پیش اگر وۄنۍ گۄڈے پیش تھوٚو یہِ چھُ کُنہِ بیہان لہذا چھُنہٕ سُہ جرنلسٹ پتہٕ کامیاب زندگی مز روزان کینٛہہ سُہ چھُ مٔزوٗریا کران اتھ منٛز لہذا اَسہِ چھِ تِم انکشافات وٕچھمٕتۍ یِم زن جرنلسٹو کٔرۍ تمہِ پتہٕ کوٚر یِمن سۭتۍ وابستگی ٲس تِمن ٲسۍ تِم ونان یِتھ کٔنۍ چھُ تۄہہِ نٮ۪سبت سُہ اوس پتہٕ تٔمِس جرنلسٹس نِش یِوان پتہٕ اوسُس خۄش کران مختلف رنگو
تو نتیجہ سہ جرنلسٹ رود جرنلسٹ کی مگر یمو پن ناو ات مز پید کور عالمی سطحس پہ لوکل سطحس پہ ونکس زن ییژ چینلہ چھ اعتبار کینچن چینلن ات مز باقی خبر سارنی امس کیا پتہ کنہ تو کہن نظریہ یہ پکناوان ام کن تر سہ اعتبار روزان کی تو زندہ روزان یت کن قلم کار امس گھس قلم آسن ذات پنہ خاطر کی قلم کار گھس تمن دن کی یم قوم اتھے کن جرنلسٹ نام کمانا جس کو کہتے ہیں ات مز نامداری تہ آسان مگر تس جرنلسٹس تتھ میڈیا مین یس دعوی دار آسہ تمس گژھِ دلیل تہ آسن دیانتچ پزچ مٲلِس یہ زانُن یہ ہسا چھُ مےٚ پان پیشہِ پکناوُن تہٕ مےٚ چھُ پنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ نہ تِم جرنلسٹ چھِ عالمس منٛز ؤتھمٕتۍ یِم جرنلسٹ مسکیٖن روٗدمٕتۍ چھِ مگر ناو چھُکھ روٗدمُت تیوٗت سٲری پادشاہ ٲسِن یا کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ سرکٲرۍ عہدُک کوتاہ تہِ تھدِ مُلکُک تھوٚد موہنیوٗ اوس سُہ آو تہٕ گوٚو کۭتیاہ آے مگر یم انسان چھِ زندٕ روزان یمن حیٲتی چھِ امی سۭتۍ باگہِ یِوان ییٚلہِ یِم دیانت دار آسن فکر پنٕنۍ آسٮ۪کھ امہِ پتن آسن تی کلماوان تی آسن بیٚین تام واتناوان دیانت دٲری سان ذمہٕ دٲری سان تٔمسٕے ونو جرنلسٹ تٔتھۍ چھِ ونان میڈیاہس چھُ تمہِ سۭتۍ ویکار ہُران ییٚلہِ تِتھۍ انسان اتھ منٛز یِن تہٕ وٕنکیٚنُک یُس زن اسہِ پیش میڈیا چھُ آمُت یہِ چھُ ژٲپِتھ میڈیا لہذا یہ چھُنہٕ ہٮ۪کان تہِ واتنٲوِتھ یہِ زن گُدران چھُ یہِ زن اسہِ سپدان چھُ سۄ چھنہٕ تمِچ سۄ آواز یۄس زن چھِ میڈیا مین چھُ عوامٕچ آواز گژھِ یہِ آسُن لہذا یہ چھُ پنُن پان لبہِ لبہِ پکناوان وٕنکیٚنس تہٕ نُنہٕ روٚستُے سیُن پکناوان کیا کچھ کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے اور بہرحال ہم نے اور مختصراً کچھ اور مزید لوگوں سے بھی بات کی چاہے وہ سیاست سے وابستہ لوگ ہو یا صحافت سے کچھ لوگوں نے میڈیا کے بارے میں یعنی رول آف میڈیا ان کی ذمہ داریاں کیا ہے جموں کشمیر میں صحافیوں کو بالخصوص کشمیر میں صحافیوں کو کس طرح کی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نیشنل میڈیا کس طرح کے ڈرامہ کر رہا ہے ہم سب کی بات نہیں کرتے پھر ایک بار بتا دیں لیکن اکثر میڈیا ہاؤسز جو ڈرامہ اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں جس میں کشمیر کی تصویر بھی غلط دکھائی جا رہی ہے اور ملک میں جب کووڈ ہوا تو لگا شاید کووڈ کے بعد یہ سدھر جائیں گے لیکن ایک میڈیا والے کی اس کیمرہ اور مائک کی بہت عزت ہے یہ اس کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگوں کو جوڑ دے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہی کیمرہ یہی مائک لوگوں کو بانٹ رہے ہیں میں یہاں سوال کرنا چاہ رہا ہوں نیشنل ٹیلی ویژن کو کہ آج تک ان ایمپلائمنٹ کے بارے میں کتنے ٹاپکس پہ کتنی بار بات کی ہے آج تک انہوں نے ہماری جی ڈی پی جو نیچے آ رہا ہے کتنی بار بات کی ہے آج تک ہمارے پاس ہیلتھ سیکٹر ہے ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے آپ حیران ہو جاؤ گے انڈین جو ہمارے جی ڈی پی اس کو 1.28% ہیلتھ کے بارے میں اسپینڈ کیا جاتا ہے جبکہ ڈیولپڈ کنٹری کا جو ہیلتھ سروس ہے اس کا 15% اسپینڈ کیا جاتا ہے جی ڈی پی آج تک کسی نے بات کی ہے آج اگر ہمارا یہ چائنا کا مسئلہ چل رہا کوئی بات نہیں کر رہا خاموش بیٹھے ہوئے یہ کیا ہے یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک آج ایسا ہو گیا ہے یہ پرائم ٹائم میں جس کو زور سے چلانا آ گیا نا وہ بات صحیح ہوگی جس بیچارے کو دبی ہوئی آواز میں ہو گیا وہ بڑا وہ انکوالیفائڈ مانا جاتا میں یہاں بہت ذمہ داری کے ساتھ خوش آمدید دینا چاہتا ہوں ANN کو یہ پہلی واحد چینل ہے ہماری جو لوکل چینل ہے جموں اینڈ کشمیر کیوں خوش آمدید دینا چاہتا ہوں میں نے دس چینل وی آر ریگولرلی سینگ ان آر ہاؤسز آلسو میری والدہ دیکھتی ہیں اس چینل کو کیوں دیکھتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کام کیا جوڑنے کے لیے بے امتیاز مذہب کے بے امتیاز ریجن کے بے امتیاز کسی کی کوئی امتیاز نہیں رکھا اور انہوں نے ہمیشہ ANN نے کوشش کی ہے تتو دیکھنے کے دیکھیے میں دیکھتا ہوں جب ANN نیوز دیر از اے رپورٹر فرام کپوارہ دیر از اے رپورٹر فرام کرنا دیر از اے رپورٹر یہ جو رپورٹنگ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ گراؤنڈ سچویشن میں دیکھتا ہے
क्या है, तो वो आके आपके स्टूडियो में आके वो न्यूज़ चलती है, वो यही न्यूज़ क्या होता है, आईवानों तक बात चली जाती है, आईवान थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं रोड बिल्डिंग ये सब चीज़ के लिए। सो हमारा हम ANN को मुबारकबाद देते हैं पर्सनल लेवल पे, लेकिन अफसोस ये है कि नेशनल लेवल पे आजकल जो भी मीडिया चल रहा है ये एक बांटने का मीडिया चल रहा है। दिस इज़ नॉट फॉर इंडिया, दिस नॉट गुड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। जमहूरियत में मीडिया का किरदार इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, जैसे आपको ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरह डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए एक अच्छे एंकर्स, एक अच्छे मीडिया वालों की ज़रूरत है, जिनको अच्छा रोल निभाने की ज़रूरत है। जैसे कोविड में आप लोगों ने गली गली जाकर लोगों की मिजरीज दिखाई, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की सफरिंग दिखाई, तो वैसा ही करना होता है। आपने नहीं देखा कि हमारी जान भी जा सकती है, हम भी इस बीमारी में फंस सकते हैं, मगर आपने नहीं देखा। इसी को मीडिया कहते हैं, इसी को सफरिंग जो आप उठाते हो शाम को टीवी पर, लोगों की वॉइसलेस लोगों की वॉइस जो आप बनते हो, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते कि आप शाम को एक पाकिस्तान का जनरल बिठाओ, एक हिंदुस्तान का जनरल बिठाओ और तोते की तरह या वो मुर्गों की तरह आपस में लड़ाओ, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसको मीडिया नहीं कहते, इसको लोगों की आवाज़ नहीं कहते। आप बच्चे क्या सिखाते हो बच्चों को, जो हमारे बच्चे न्यूज़ चैनल देखते हैं, क्या सिखाते हो उनको? फ्यूचर कैसा उनका बनेगा? क्या हम लड़ाई झगड़े ही करें? क्या हम बम ही लगाएं? क्या हम लोगों के लिए रोटी नहीं ढूंढें, सिर्फ गन और मशीन गन और बंदूक और आइटम बम की बात करें? आप मेहरबानी करके लोगों की बात कीजिए जिनके पास खाना नहीं है। आपने खुद देखा कि रेलवे ट्रैक पर कितने आदमी ने जान दे दी। आपने खुद देखा कि रेल जाना दिल्ली है पहुंचती बॉम्बे है, जाना बॉम्बे है पहुंचती और कहीं है। तो आप इस सिस्टम के बारे में बात करो। ये नाकाम लोग जो है, जो गलत लोग हैं, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की ठान रखी है, इनके बारे में बात कीजिए। ये मत कीजिए कि बंदूक ग्रेनेड, आप किसको आप दिखाते हो? जवान क्या सीखेंगे? आप आइडियल बनाओ, आप अच्छे आइडियल बनाओ, आप महात्मा जैसे, गांधी जैसे लोगों को आगे ले आओ जो उसकी आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी आपने ये देखा कि हम एप्पल बनाते हैं, उस पर लिखते हैं कि नहीं ये हिंदू नहीं खा सकता, ये बौद्ध और सिख नहीं खा सकता, ये और कोई कम्युनिटी वाला नहीं खा सकता? क्या पंजाब वाले चावल बनाकर बोरी पर लिखते हैं ये कश्मीरी मुसलमान नहीं खा सकता, ये हिंदू? वो भी खाते हैं, जो गलत लोग हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, वो लोग भी खाते हैं, मगर वो नहीं देखते, क्योंकि वो इंसानियत जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें उगाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई चीज़ें, इन पर आपका कोई हक नहीं है। मगर आप शाम को अब इन चीज़ों पर भी बात करते हो कि इन चीज़ों को डिवाइड करने की बात करते हो। सेबों पर ये लिखा है, वो उसका है, चावल ये है, यही करना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN पे खास नशरियात। हम बात कर रहे हैं मीडिया की जिम्मेदारी, और अगर जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत में हक बनता है, और जो मीडिया है ये चौथा स्तून है जमहूरियत का। लेकिन अगर हम ये समझे कि कानून से बालातर है तो शायद हम गलत है। अगरचे हम भी मीडिया का हिस्सा है, से बाहर जा चुके हैं और वो खुद को खुदा समझने लगे हैं। इस हवाले से बात करें तो आजकल के एंकर स्टूडियो में बैठ के खुद को जज समझते हैं। उन्हें लगता है कि पार्लियामेंट का कानून भी उसी टेबल से पास होगा और किसी को वो फांसी भी उसी टेबल पे दे सकते हैं। वो जज भी खुद है, वो गेस्ट भी खुद है, और सब कुछ ही खुद है। यानी अगर कश्मीरी में बात करें, जिस तरह हमारे यहाँ वाजवान बनाया जाता है, उसमें हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम कश्मीरी में कहते हैं वाजा, और वाजा का काम होता है जो है पकवान, यानी सब्जियां, गोश्त, बाकी चीज़ बनाना। लेकिन उसके लिए उसे काफ़ी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, जिसमें बर्तन, जिसमें सब्ज़ी, जिसमें चावल बिलखुसूस, और मीट या चिकन्स की ज़रूरत हो रही है। उसके बाद मसाले भी होते हैं। लेकिन अगर वो ये कहे कि आप कुछ नहीं लाए, मैं खुद ही बिना इन चीज़ों के बगैर आपको सब दे दूंगा एक कमरे में बैठ के, तो आप समझेंगे कि ये पागल इंसान है। यही तो मीडिया हाउसों में बैठकर लोग कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने मजीद कश्मीरी लोगों से बात की, कुछ सियासत से वाबस्ता और कुछ सहाफ़ियों से। उन्होंने अपने तासुरात क्या दिए वो दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे स्टूडियो में क्या कुछ ड्रामा होता है, वो ड्रामा भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सहाफ़ियों और सियासतदानों की ये कुछ बातें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली द जर्नलिज्म मीन्स। जर्नलिज्म का मतलब होता है कि इफ़ यू हैव बिकम द वॉइस ऑफ पीपल, यू आर द रियल जर्नलिस्ट। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्या यहाँ पर रियल जर्नलिज्म चल रही है, यहाँ की आप छोड़े,
नेशनल टीवी की मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल टीवी पे जो जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, स्टूडियो में बैठे होते हैं, स्टोरीज कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो स्टोरीज जो है वो फैक्ट्स के बुनियाद पे होते हैं? जर्नलिज्म का मकसद हमेशा होता है कि आप सच्चाई को दुनिया के सामने लेके आओ। इस चीज़ को आप दूर नहीं रख सकती, ये रियलिटी है। और जर्नलिज्म का काम होता है, जर्नलिस्ट का काम होता है कि लोगों को सच्चाई से आगाह कराना, लोगों को जो है उनके सामने रियलिटी रखना। वही आप देखिए कि एक जर्नलिस्ट एक स्टूडियो में बैठ के, एक एंकर स्टूडियो में बैठ के इस जर्नलिज्म के नाम पे, कम्युनिटीज़ के नाम पे, बाकी सारी चीज़ों के नाम पे दंगे फसाद कराता है। और मैं कहूँगा सबसे बड़ा रोल अगरचे इस वक्त इन सारी चीज़ों में है, वो मीडिया की वजह से है। मैं लोगों को, पॉलिटिशियंस को उतना ज़्यादा जिम्मेदार इस चीज़ के लिए कभी ठहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक जो कोविड-19 अभी चल रहा है, इस कोविड-19 जहाँ पूरी दुनिया लगी थी इस कोविड-19 का वैक्सीनेशन ढूंढने में, सोल्यूशन ढूंढने में, वही हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए कि जर्नलिस्ट जो है, एंकर जो है, वो स्टूडियो में बैठ के इस पर डिबेट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर कश्मीर वादी की बात कर, बाहर के एजेंसियों के साथ काम करते भी है और करते भी थे, लेकिन सवाल या निशाना ये है कि जब भी वादी कश्मीर में कोई आफत आ जाती है, चाहे कोविड हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 2008 का हो या 2010 हो, कोई ना कोई आफत आती है, लेकिन उसका जो एक्चुअली सिचुएशन होती है, खासकर अगर देखा जाए, अगर ज़मीनी सतह पर देखने को मिलता है, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ से कुछ और दिखाया जाता है। देखिए, बाहर का मीडिया क्या है कि ऑफिस में बैठ के इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बार मैं इनको अपनी तरफ से जहाज की टिकट दूंगा, एक हफ्ते इधर काम करें, मेरी तरफ से पूरी मीडिया को, इधर आए लाल चौक में एक हफ्ते काम करें, उधर बैठ के काम करना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो यहाँ की मीडिया ने कुर्बानी दी है वो लाजवाब नहीं। वो तो देखो, वो अपनी नजरिए से देखते हैं, तो हम अपनी नजरिया से, अगर यहाँ ठीक भी हो रहा है, यहाँ ऊपर वाले की तरफ से मौसम का वातावरण भी ठीक है, तो हमने भी एहतियात से काम किया है शायद, तो बल्कि लोगों ने ये बात है कि इनको आदत है, लेकिन हमने मुसीबतें झेल कर आदत किया, और मीडिया ने भी अच्छा रोल किया, लोगों ने अच्छा रोल किया, सोशल डिस्टेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, कुल मिला के इसका हमने बिल्कुल जवाब किया और इसके साथ लड़ाई लड़ी है। वो प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ी है, ना कि किसी मीडिया पर या किसी पर्दे पर लड़ाई लड़ी है। देखो, मीडिया की जितनी ज़रूरत है, ये तो लोगों की ज़रूरत है, दूसरों तक पहुँचाते हैं। जो उनकी ज़रूरत है, मतलब सरकार तक पहुँचाए तो क्यों नहीं करेंगे? उनको पता होगी उनकी ज़रूरत क्या, उनके मसाइल क्या है, उनके इक़दाम क्या है। तो ओवरऑल देखेंगे जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ते हैं। एक बहुत टफ जॉब बन गया है एक जर्नलिस्ट के लिए कि वो सच्चाई लोगों तक पहुँचाइए। जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि जो भी ऑन ग्राउंड जो चलता है, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के बगैर कितने भी चीज़ें हैं और कितने भी मसाइल हैं, एक जर्नलिस्ट ही की एक वाहिद रास्ता है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में, जो इनके बीच में एक ब्रिज जो है एक काम करता है एक जर्नलिस्ट। ओवरऑल अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाने पड़ते हैं। इवन आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसमें भी आप अपनी जान को बाजी लगाते हुए आप सुबह निकलते हैं ये सोच कर कि क्या दिन में हो जाए हम अपने लोगों तक है वो पहुँचाएँ। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी जगह कवर कोई स्टोरी करने जाते हैं तो वहाँ आपके साथ जो है रेटिलेशन होती है, वहाँ लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ हमें गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती। ओवरऑल अगर देखेंगे जर्नलिस्ट दोनों साइड से है जो टारगेट होता है, लेकिन ये चीज़ें इस कन्फ्लिक्ट में होती रहती है। हमने ये चीज़ें ऑलरेडी देखी है और उम्मीद करते हैं कि आगे ना देख पाए ये चीज़ें, बट इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट एंड द पीपल जो हमारे साथ सपोर्ट करे, ताकि हमारे जो आपके और लोगों के बीच में जो ब्रिज है वो एक अच्छी तरह से काम करे। और लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आज जो है कोविड-19 पेंडेमिक है, आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है गाइडलाइंस फॉलो करिए और उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो। दुनिया में अगर देखा जाए तो जो कश्मीर का जर्नलिज्म है वो अपने आप में एक मिसाली जर्नलिज्म है। यहाँ के जर्नलिस्ट को इस बात के लिए हम सलाम करते हैं। और एक तरफ पत्थरबाजी, एक तरफ दहशतगर्दी और एक तरफ कोविड को लेके इन तीन मामलों पे जो हमारा चौथा सुकून यहाँ कश्मीर में लड़ रहा है, इसके लिए इनको शाबाशी की ज़रूरत है। और मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट हैं इनके जो मुद्दे हैं उनको हित में रख के यहाँ के जर्नलिस्टों को कोई पैकेज या खुसूसी रियायत दी जाए, ताकि यहाँ के जर्नलिस्ट जो हर पल
अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं ताकि उनकी जान माल और उनकी जो लाइफ है उसको। मजीद अगर हम अब बात करें तो लगता है राजधानी से चलने वाली मखसूस चैनलें जो है किसी मखसूस एजेंडे पे काम कर रही हैं और उनके पीछे कोई बड़ी लॉबी है जिनका काम यही है कि लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई जाए। नाज़रीन, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत में बात करने का हक हर एक को है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी मखसूस मज़हब, फ़िरके या किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ जो है कोई एजेंडा चलाए या इसके जज्बात मजरू करे। हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर हम बात करें अर्नब गोस्वामी की तो उसके एजेंडे की बात करें, जिस तरह से वो खुद जज भी बना है, जिस तरह से वो खुद वकील भी बना है, मुजरिम भी बना है, यानी हर चीज़ जो है उसने अपनी टेबल पे रखी हुई है। कभी वो जिसके बारे में चाहे उसके बारे में जो है फैसला सुना देता है। और नाब के बारे में कहा जाता है कि वो तो बात ही नहीं करने देता है, लेकिन हाँ, हमारे जो गेस्ट ऐसे डिबेट्स में जाते हैं उन्हें तब तक नींद नहीं आती जब तक वो इन डिबेट्स में नहीं जाते। कभी वो किसी को कहता है कि आप एंटी नेशनल हो, तो वो कभी वो कहता है कि आप भारत माता की जय कहो तब आप हिंदुस्तानी है। कभी वो कहता है कि जब तक आप चुप नहीं करेंगे मैं आपको सुनूंगा नहीं। एक सहाफी का काम सुनना होता है। हम आपको छोड़ेंगे पहले इंडिविजुअल्स के साथ। ये है रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी। Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? Theatre, Rotary Club or school? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop, I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pathan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. I can say something. I'll tell you why. I'll tell you why. Today the argument is that don't force to stand up for 52 seconds. Me. 1 second. Listen. Well, you say patriotism. You say patriotism. Is it not? Then why are you being forced? नाज़रीन, प्रोग्राम में बात रहे चूंकि हमने जो रखा है जो हम बात करेंगे वो है जिम्मेदारी जमहूरी तरह काम करता है। एक छोटी सी क्लिप इसी चंक की जो है काफी वायरल हो रही है। उसमें दोनों तरफ से मिसाइल, ये दोनों मिसाइल पूरी नुकसान हो जाता। एक के हाथ में घोरी मिसाइल और दूसरा हाथ को विजुअल्स को दिखाना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए किस तरह से दोनों के हम लोग से और पाकिस्तान से किस तरह मिसाइल चलाने की कोशिश करते। शुक्र है इनके पास इस मिसाइल का बटन नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल के प्रोग्राम में फिर बात करेंगे मीडिया की जिम्मेदारियां। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इन वादों और इन दुआओं के साथ कि कल आपसे होगी फिर मुलाकात। जब तक कि यार आपका हमारा अल्लाह निगहबान।
آصف میموریل ہیلتھ کیئر شمالی کشمیر میں ایک ایسا واحد اور منفرد ڈائگنوسٹک سینٹر جو جدید سہولیات سے 100% لیس ہے. ہمارے یہاں ایسے ٹیسٹس جو پہلے وادی سے باہر دوسری ریاستوں میں